गुड इवनिंग लेडीज। नवरात्रे के पहले दिन में एक नींव डालने गए बाड़मेर में, जहाँ पे हमारी ऑयल एंड गैस की फैक्ट्री है, और वहाँ पे हमने शुरू किया ये सपना, जहाँ पे हम स्टेज फॉर अस। थैंक यू। Thank you for the very warm welcome, Ritu, and thank you all so much for joining us here today as we launch the Nandghar movement. Today marks a milestone in the journey towards a developed India, an India where every child has the ability to realize their dreams and aspirations. I think we all know that health and nutrition are the building blocks of any society, and with this movement, Vedanta wants to do its part towards ensuring these critical needs are met so that children can focus on that, which is the most important thing of all, their dreams. For Vedanta, the numbers tell the real story. More than 6,000 Nandghars are enablers of change and sustainable development with a presence in 14 states across India. The Nandghars aim to transform the lives of 8 crore children and 2 crore women across 13.7 lakh Anganwadis in the country. I would now like to request Priya, chairperson of 8ZL and non-executive director of Vedanta, who's also anchoring ESG at the organization and truly championing the cause of women and child development, to share a few words about the movement and the remarkable journey that Nandghar has embarked upon. Good evening and warm welcome to all. Thank you all for joining us today. Today is a little bit of my fault. Thank you, Priya, for those very inspiring words. The goal to ensure holistic development of children will not only build a better future, but also empower the nation to flourish in the years to come, as you so rightly mentioned. Keeping the spirit of philanthropy in our hearts, it is now my honor to invite Mr. Anil Agarwal, Chairman, Vedanta Group. A committed philanthropist, Mr. Anil Agarwal believes that businesses must give back to society and help them prosper. He has pledged, as Priya mentioned, 75% of his wealth for social impact and signed the Giving Pledge. Ladies and gentlemen, could we have a round of applause for that? Anil ji is committed to promoting the well-being of communities with a particular focus on women and child development. His dream project, Nandghar, is developing model Anganwadis across India that are focused on eradicating child malnutrition, providing education, healthcare, and empowering women with skill development. And now it's my great pleasure to invite National Award winner, actor par excellence, needs no introduction, Padma Shri, Mr. Manoj Bajpayee. Just like Chairman Anil ji, Manoj also hails from Bihar, a connect that I'm sure propelled him to join this movement. Manoj's story of success is that of grit and perseverance, a story we are all excited to hear about today. Anil ji and Manoj, please. Could we have the unveiling of the plaque, please?
And now could I request for the AV to be played? एक्टिंग के लिए गांव छोड़ के दिल्ली आ गया, धीरे धीरे नाम होने लगा, वाहवाही। All of you are looking forward to this Q&A. I know that I certainly am, because there's so many questions that I have of both these exemplary gentlemen. Anil sir, Manoj ji, एक सवाल आपसे कि you're very discerning when it comes to the causes that you give your name to your support to. तो आपने कैसे नंदघर को चुना? यही धनराज विला में अनिल जी का न्योता आया था, निमंत्रण आया था मेरे पास, और मैं थोड़ा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था जब मुझे फ़ोन आया कि अनिल जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, उसका हम लोगों के काम से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। तो मैं भी आया यहाँ पर, और यकीन नहीं मानेंगे आप कि हम लोग सिर्फ लिट्टी चोखा की बात करते रहे पूरी शाम, और मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रहा है, और ये बार बार उस समय इन्होंने लिट्टी चोखा और पता नहीं क्या क्या किन किन चीज़ों का इंतज़ाम किया था। करीब मैं 2 घंटे रहा यहाँ पे, फिर मुझे वापस जाना था क्योंकि काम पे भी लौटना होता है। लेकिन वो 2 घंटे में मैं अनिल अग्रवाल वेदांता के इतने बड़े दिग्गज से नहीं मिला। जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं किसी बिहार के किसी अपने सीनियर से मिल के आ रहा हूँ, जो कि परिवार के सदस्य हैं। कहीं अभी भी मैं आते हुए क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना साधारण व्यक्तित्व है और इतना बड़ा एंटरप्राइज चलाते हैं, ये इस तरह का इनकी जर्नी रही है। लेकिन ये सारी बातें घूम फिर करके ये करते हैं मिट्टी की, ये बातें करते हैं परिवार की, अभी ही ये बातें कर रहे थे संस्कार की। दैट्स हाउ ही इज़। और उस पूरे दौरान इन्होंने जब अपने नंदघर और 8 करोड़ बच्चों को खाना देना, उनको सही परवरिश देना, और उनकी शिक्षा का इंतज़ाम करना, 3 करोड़ महिलाओं को जॉब देना, ये पैसा तो सभी कमाते हैं, किसका पैसा, हम सब इस कमरे में बैठे हुए हम सब लोग मेहनत करते हैं, अपना एक सपना है और उससे हमको एक चेक आता है, दैट इज़ वन पार्ट। लेकिन हम उस काम के अलावा हम जाना कहाँ चाहते हैं? बहुत सारा अचीवमेंट तो हम कर लेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन आखिर क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल हर आदमी के दिमाग में रहता है। और मेरे ख्याल से अनिल अग्रवाल जी ने उस सवाल का जवाब बड़े कमाल ढूंढा कि उन्होंने अपनी 75% आमदनी जो है उन्होंने समाज को दे दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़ा इंस्पायरिंग है अनिल जी, बहुत, क्योंकि जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं और अपने आसपास पूरी तरह दोनों तरफ देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है आप भी देखती होंगी, आप भी कलाकार हैं, सेंसिटिव हैं, बहुत सारे ऐसे दृश्य आते हैं सामने जो कि आपको सहज नहीं रहने देते हैं, और उस समय आपको लगता है कि ऐसा आप में ख़ास क्या है जिसके कारण आप यहाँ पे हैं, और ऐसा ख़ास क्या नहीं है वहाँ पर कि वो वहाँ पे हैं। मैं भी तो वही हूँ, वो मैं हूँ। और वहाँ से शुरू होती है वहाँ तक की यात्रा जो अनिल जी ने बड़े कमाल ढंग से पूरी की है। और नंदघर के साथ उस रात को बैठने के बाद, बातें करने के बाद मुझे लगा कि ये इतना बड़ा मिशन है और इतना बेहतरीन मिशन है कि शायद अगर जुड़ जाऊँ तो वो थोड़े बहुत जो बुरे कर्म हैं कट जाएंगे। तो अंतोगत्वा जो है, आदमी को ये भी डर लगता है कि आपने सब कुछ समाज से, प्रकृति से लिया तो सही, दिया क्या? क्योंकि प्रकृति को अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप सिर्फ उससे लें, क्योंकि जब प्रकृति से हम सिर्फ लेते रहते हैं तो उस प्रकृति जो है बाढ़ भेज देती है, प्रकृति सुनामी भेज देती है, ये रिमाइंड करने के लिए कि तूने बहुत ले लिया, अब देना शुरू कर मुझे। तो अनिल जी ने
और जो बातें की मुझसे, तो मैंने अपने आप को पूरी तरीके से उसी समय मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, जैसा भी जिस रूप में हो। और ये जब हम बनाने के लिए गए थे, ये बड़ा मेरे लिए बहुत ही कमाल का अनुभव रहा। वो जो बच्ची जो आके बोलती है खाना खाए कि हाँ खाया, तुमने खाया, तो ये वो लड़की ने इम्प्रोवाइज़ किया था। मैंने कहा खाना खाया, तो उसने कहा हाँ खाया, तुमने खाया। तो बच्चों को जब मैंने वहाँ देखा और जिस तरह से जो खुशी देखी उनके चेहरे पे, और जो जितने कॉन्फिडेंट दिखे, और जो जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनका पूरे तरीके से समर्पण देखा उन बच्चों के प्रति, उस सेंटर के प्रति, वो मुझे बहुत सारे सेंटर में विजिट कर चुका हूँ, उससे बहुत अलग लगा। तो इसका मतलब कि अनिल जी ब्लेस्ड हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इनके विजन को आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं और वो लेके जा रहे हैं। उसी में एक लाइन याद आती है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आप सपना आप देखते हैं, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं तो कुछ दूर के बाद धीरे धीरे कोई ना कोई आपको मिलता जाता है। थैंक यू मनोज, थैंक यू। आपने इतनी सारी बातें इतनी खूबसूरती से बयान की। अक्सर कलाकार सोचते हैं ये बातें कि हम में क्या है जो अलग है, हम किस तरह से अलग हैं। एक्चुअली देने के लिए ही, वापस देने के लिए ही अपनी रोशनी जो हम ऑडियंस से लेते हैं उनको वापस देने के लिए ही हम लोग को मिली होती है जो भी सफलता। बट अनिल जी से मुझे एक जो आपने बात कही, बहुत जो थोड़ा सा समय हमने वेटिंग रूम में बिताया तो मुझे भी लगा कि जैसे एकदम मिट्टी की खुशबू आती है उनसे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब अभी ये बोलेंगे कि चलो थोड़ा गन्ना तोड़ के लेके आते हैं, खाते हैं वहाँ पे चौराहे पे बैठ करके थोड़ा चाय पीते हैं बाजार में। ऐसा लगता है इनके साथ में। बहुत ही छोटा समय मैंने बिताया इनके साथ अभी। बट ये सेल्फ मेड जो है इनकी उपलब्धियों में एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एक्चुअली द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी बिजनेस टू बी लिस्टेड एट द लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड मेकिंग इंडिया प्राउड इन सो मेनी वेज। तो आपका ये बिहार से जो सफ़र है मुंबई तक का, मुंबई चमक धमक शो फ्लैश इस सब का प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे बिहार से मुंबई तक का जो सफ़र है आपने इस सिंप्लिसिटी और इस रूटेडनेस से कैसे कायम किया? हम लोग जब बिहार में रहते थे तो कुछ जो एंटरटेनमेंट था वो तो ज़्यादा पिक्चर ही रहता था। तो पिक्चर में हम लोग देखते थे कि डबल डेकर बस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तो वही रहता था कि भाई अभी बम्बई जाना है। और हम लोग एक ही बॉटल वहाँ देखते थे उस समय 30-40 साल पहले। तो वो 69 की वो विस्की की बोतल दिखती थी। तो बैट 69 की वो ही दिखती थी। वो विलन के घर में होता था वो। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं पैसा आएगा तो बैट 69 पीऊंगा। तो वो बैट 69 की बोतल तो सोचते रहते थे, कुछ पता भी नहीं था कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन एक मौका मिला, 3 दिन लगे आने में बम्बई। मैंने इतना बड़ा रेलवे स्टेशन लाइफ में देखा नहीं था, फिल्म में देखा था। और बाहर निकलती है डबल डेकर बस भी दिख गई और बड़ी बड़ी मंजिलें भी जो थी चल रही थी। और हमारा एक दोस्त जो था वो जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, तो वो पटना का ही था। वो थोड़ा पैसे वाला था तो पहले आ गया था और थोड़ा मॉडलिंग सुंदर था। तो वो बिहारी था लेकिन पक्का मॉडलिंग भी कर रहा था। तो उसने मेरे को दिखाया। और यहाँ पे एक बिहारी लोगों में थोड़ा डर कम होता है। हाँ। चांस ले लेते हैं, बोले चलिए ना देखेंगे क्या होगा। कोई आदमी डांट भी दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बगल से निकल जाते हैं। तो आप विश्वास कीजिए, जो हम लोगों की बम्बई में रहने के बाद शुरू में 10 साल में जो थिक स्किन हुई है, लोगों ने कमरे से निकाल दिया, बाहर कर दिया, कोई से रिकॉग्नाइज नहीं किया, बैंक वाला पैसा नहीं देता है, होटल में भी
ताजमहल होटल में घुसने में डर लगता था, कोई पूछे नहीं लगा कौन हो भाई। वो मूछ वाला दरबान होता था पहले, दरबान होता था, उससे बहुत डर लगता था कि इसको पता चल जाएगा कि मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। तो ये मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं इस कारवां से गुजरा। मैं क्योंकि अपने आज के तो ये देखते देखते ये समझ में आया कि जो मज़ा देने में है, क्योंकि हम लोग भी जब शुरू में आए थे तो जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने दिया, और जिससे उम्मीद नहीं थी उन्होंने नहीं दिया। उनके घर गए जो कि हमारे थे, उनको था कि वो जाके गले लगाएंगे, अंदर बैठाएंगे, वो बाहर से ही बोले ठीक है फिर दोबारा मिलेंगे। अरे हम लोग बक्सा वक्सा लेके आए थे रहने के लिए, तो और एक आदमी ऐसा मिला जिससे कोई पहचान नहीं थी, उसने गले लगाया, घर पे रखा। तो ये जो नंद घर का, हम लोग गवर्नमेंट तो है नहीं, हमारा था ये था कि आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में तो कभी ऐसा मन में नहीं आया था कि 1000-2000 से ज़्यादा नंद घर करेंगे। तो हमारे गांव में क्या होता था कि गांव में हमारे बुजुर्ग लोग एक कुआं बना देंगे, एक स्कूल खोल देंगे, यही रहता था वहाँ पे पटना में, बिहार में, आसपास में। लेकिन पूरी सोसाइटी को चेंज कर देंगे, ये जब ये मन में आया तो पर्दा खुला। ये मेरी बेटी प्रिया ने मेरे को समझाया, बताया कि पापा आप आगे बढ़ेंगे दरवाज़ा खुलेगा। हमने गवर्नमेंट में बात की, रितु ने ज्वाइन किया, लोगों ने ज्वाइन किया। अब जो ये सपना आ रहा है, अब ये मेरे को साकार होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने अब जैसे जितने पंचायत वाले हैं, क्योंकि हम लोग से क्वालिटी बनाना चाहते हैं और सारी चीज़ टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं। जो हमारी दीवारें बनी हैं वो गर्मी में ठंडी हो जाती हैं और ठंड में गर्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ सारे सोलार लगे हुए हैं। हर टीवी चैनल हमको एजुकेशन देने के लिए तैयार है। हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल हैं वो अपनी वैन लगा देते हैं लेडीज़ को, बच्चों को हेल्थ केयर करने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका की जितनी भी फूड फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो हमारे लिए डेवलप कर रही हैं कि खाना कितना खिलाएंगे, खाना आधा भी मिलेगा। तो न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट होता है वो बना भी दिया है, चालू भी हुआ है। अगर एक कैप्सूल खा लेंगे, आधा भी खाना मिलेगा तो फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। हमारी लेडीज़ में एनीमिया बहुत ज़बरदस्त है। उनमें हमको भी विश्वास भी नहीं होता था कि 16-17 साल के 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, 3-4 बच्चे हो जाते हैं, कम्प्लीटली एक्सप्लॉइटेड, कुछ मालूम नहीं है। तो वो हम लोगों ने जब आगे बढ़ के देखा तो कोई भी हमको आज तक एक ऐसी औरत नहीं मिली जो कि विलक्षण नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है। हम आदमी लोग तो इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन अगर वो लेडीज़ को लगा दिया काम में तो कोई भी एक आज तक ऐसी लेडीज़ नहीं मिली जो काम में नहीं लगी। किसी ने चक्की बना ली, किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, लोगों ने मिलके बैंक खोल ली पैसे जमा करके, और वो काम आगे कारवां आगे बढ़ता चला गया जैसे आप बताते जा रहे हैं। अभी जो है जितने भी पंचायत में ये हो गया है कि पंचायत में प्रेसिडेंट जो है और पंचायत के जो हेड हैं वो लेडीज़ ही होनी चाहिए। और लेडीज़ को सबसे पहला एक माइंड सेट हो गया है गाँव में कि आप कितने नंद घर चलाते हैं। और पंचायत की लेडीज़ जो है वो नंद घर चलाती हैं। जितने एमएलए हैं, एमएलए भी बोलते हैं कि आप, तो ये जो कारवां जुड़ा है एमएलए का, एमपी का, जितने हमारे आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो रहे हैं, ये हमारी माही हमारी ग्रैंड डॉटर है, ये रात दिन हमको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ यही समझती है कि हम सबसे अंग्रेजी में बात करती है, मेरे से हिंदी में बात करती है कि नानू ज़्यादा समझेगा नहीं। तो अब हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो रहे हैं वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम 10 नंदघर ले लें क्या आपके। और ये लोग जो, क्योंकि अकेले कुछ होगा नहीं, कारवां एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है जिसमें कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये तो हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। बहुत से लोगों ने वहाँ पे, पंचायत वालों ने शाम को कंप्यूटर क्लासेस चला दी, बहुत से लोगों ने वीकेंड पे फंक्शन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, छोटी मोटी मैरिज के लिए वो जगह देनी चालू कर दी। एक गांव में जगह हो गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम जाते हैं पंचायत वालों को, जब एक चाबी, एक गोल्डन की चाबी ऋतु बनाती है, उनको हैंडओवर करती है,
उनको ऐसा प्राउड फील होता है कि हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो खुद ही संभालती हैं। तो ये जब ईश्वर चाहता है तो एक आंधी चलती है, ये आंधी चल गई है कि हिंदुस्तान में ये 1.6 मिलियन 16 लाख नंदघर बनेंगे और हमारे जितने 8 करोड़ बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार मिलेगा। अभी भी हम जितना आहार जिस तरह का देना चाहिए, एक प्राउड फील होना चाहिए कि हर बच्चे को ड्रेस मिले, हर बच्चा टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाए, और एक ऐसी थाली जो हमारे यहाँ चलती है जिसमें कि वो कटोरियाँ बनी रहती हैं, 2-3 चीज़ें बने उसमें। और आप ये विश्वास मानिए दुनिया का ऐसा जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जितनी भी फूड कंपनियाँ हैं, हर कंपनी जो है हमको साथ देना चाहती है, उनके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। तो ये मूवमेंट चल रहा है, ये चल रहा है, जैसे जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है इसको आगे करते जा रहे हैं। लेडीज़ को भी हम देख रहे हैं जिस हिसाब से लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं, आज बच्चे भी कम पैदा करती हैं, पैसा भी कमाती हैं, अपने परिवार को भी साथ देती हैं। तो ये हिंदुस्तान बदल रहा है। हम जहाँ भी एक हमने तो खाली एक हाथ लगाया है, वो अपने आप आगे बढ़ रहा है। वंडरफुल सर। एक छोटा सा सवाल और था कि आपने वैट 69 भी देख ली, डबल डेकर भी देख ली, लड़कियों का क्या हुआ? वो भी देखा ही खाली। हमारे हमको इतनी शादी करने की इच्छा थी, मैं बाबूजी को पटना जाके बोलता था कि मेरी शादी करवा दीजिए। बोले नहीं अभी तो तू 20 साल का ही है। हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शादी करवा दीजिए, खाने बनाने के लिए कोई चाहिए। अब शादी तो हो गई, शादी तो 20 साल में हो गई। उसकी 16 साल की थी, 9th क्लास में पढ़ती थी। पहले तो उसकी बड़ी बहन से होने वाली थी। हमारे फादर इन लॉ जो थे वो थोड़े कंजर्वेटिव थे, वो बोले कि बम्बई जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उन्होंने उसकी की नहीं, ये छोटी थी। हमारे बाबूजी के दोस्त थे तो बोले कि इससे कर लेते हैं। इसको समझाया कि भाई ये बोली तो मैं तो भी 8th पास करके 9th में गई हूँ, मेरी शादी करेंगे। तो हम लोग के टाइम में लड़कियों से मिल नहीं सकते थे, लड़कियों से मिल नहीं सकते थे। बातचीत हो गई अपना, ठीक है। उसके बाद तो हमको मौका मिल गया कि भाई 5 मिनट बात करने का। तो उससे हम पूछे कि भाई तुम ठीक हो ना, बम्बई चलने के लिए तैयार हो? सब बोले मेरे को क्या मालूम, पापा ने कहा है कि बम्बई जाके रहोगी और बम्बई में राजेश खन्ना रहता है, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। ये शादी जो मैं बोलता हूँ, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरा एक एक मिनट, एक एक टाइम, तकलीफें आती तो उसमें और भी मजा आता है। हम लोग फुल प्रूफ हो गए हैं, कुछ भी हो जाता है तो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं।